So, students, my today's topic is relationship between total product and marginal product. So, relationship between total product and marginal product is the same as I told you in my previous class that first of all, for this you should draw a small diagram. This is the diagram. Here you can write units of variable factor, and on y-axis you can write total product and margin product. So first of all, draw marginal product. Marginal product ups and goes down. So this is, let's say, margin product. Now draw total product. Total product, first of all, find the highest value of MP, like this one. Then lowest value and 0 of MP. The level where MP is 0, you can draw like this line straight, and total product, then you go on highest point, start to decrease. These are the three phases I told you in my previous class. The point where MP is rising is the first phase, and when MP is falling is the second phase, and MP is negative is the last phase. So relationship is that the first point is when TP increase at increasing rate. Listen carefully. TP increase at increasing rate, margin प्रोडक्शन increases. तो आप देखेंगे ये आपका कौन से पॉइंट तक है, टिल क्यू. तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे इस क्यू लेवल तक आपके पास फर्स्ट फेज है. नाउ सेकंड पॉइंट, व्हेन टीपी इंक्रीज at diminishing rate, your MP falls. It is point between Q and Q1. तो look in your diagram, Q and Q1 के फेस में आपका MP fall है, तो this is the second phase, TP increasing at diminishing rate. And when TP is maximum, MP will be 0. So look at Q1. एट Q1 पॉइंट पर आप देखेंगे इस पॉइंट पे MP आपका 0 है, एंड द वेरी सेम पॉइंट TP इज मैक्सिमम. So it is must when TP is maximum, MP will be 0. And the next point, when TP start to fall, MP becomes negative. So when TP falls, MP becomes negative. So this is point you can see in your diagram is after Q1. So this is the relationship between TP and MP. So students, the same concept can also be explained with the schedule also. So look in the schedule, I told you that this is the diagram, and schedule, your MP is increasing. Look at this, MP is increasing. Then MP is falling, 3, 2, 1.
3, 2, 1 and 0, then MP becomes negative. So this is the entire way. You can also explain by it. Now look what I told you. When TP increases at increasing rate, MP also increases. And when TP increases at diminishing rate, MP decreases. And TP is maximum, MP becomes 0, TP starts decreasing, MP becomes negative. These are the 4 points for your relationship I explained to you. So you can take the screenshot for entire concept now. This is the schedule, this is diagram, and this is the relationship. So according to marks, you have to explain. Now the next relationship, look at the screen, relationship between AP and MP. So first of all, you should draw a diagram AP and MP. For this, you should know how diagram is being made. So you should know all the rules and regulations for AP and MP. These are the units of variable factor here on y-axis AP and MP. So students, first of all, draw the diagram of AP like this one. AP can be fall but cannot be 0 or negative. Now look the maximum point of AP. जब आप इनवर्स यू शेप का AP बना देंगे तो आप AP के मैक्सिमम पॉइंट को देखें and you should intersect that maximum point and come down as MP. So listen, पहले AP बनाएंगे, AP के मैक्सिमम पॉइंट को कट करते हुए MP बनना चाहिए. अब इसमें आप पॉइंटिंग कर सकते हैं. ये आपके पास पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, जीरो वाला पॉइंट हो गया. तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट E, F, H, G. You can write Q and Q1. So on the basis of this, you can represent the relationship. So the first relationship is now, look, I'm writing it for you. The first point you can see, when MP is greater than AP, your AP increases. Look, till Q1, योर MP इज ग्रेटर देन AP. जो ऊपर वाली ऊपर है वो मैक्सिमम बड़ा होगा, जो नीचे है वो छोटा होगा. तो MP ग्रेटर देन AP है, उस केस में आपका AP राइज हो रहा है. लुक, AP ऊपर जा रहा है, तो दिस इज AP इज इंक्रीजिंग. सेकेंड पॉइंट, व्हेन MP इज इक्वल टू AP, अब इक्वल कहां पर है? एट E पॉइंट. तो एट दैट लेवल योर AP इज मैक्सिमम. तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर AP मैक्सिमम होता है. एंड थर्ड पॉइंट इज व्हेन MP लेस देन AP. अब MP लेस देन कहां पर है? तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, आफ्टर E पॉइंट के बाद. तो उस केस में आपका AP क्या कर रहा है? AP फॉल्स. AP आपका फॉल हो रहा है. और पॉइंट जो दो हैं वो एक्स्ट्रा में आप मेंशन कर सकते हैं कि बोथ आर इनवर्स यू शेप्ड. आपका AP और MP दोनों ही इनवर्स यू शेप के होते हैं. और एक पॉइंट और भी आप मेंशन कर सकते हैं, AP कैन, AP से पहले MP लिख लेना, MP कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट AP always remains positive, always remains positive. So these are the relationship between AP and MP.
So students, please take the screenshot and pause your screen and write the answers in your notebook in your own handwriting. मैं फिर से कहूंगा, ये वीडियोस वाली जो क्लासेस होती हैं ये किसी भी काम की नहीं है until you use your notebook and pen. So whatever you are watching, make sure you write it in by your pen also. I'm giving you time. So in my previous class, I explained to you law of variable proportion. I told you about the law of variable proportion. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक फेज था आपका, फर्स्ट फेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सो व्हाट आर द कॉजेज for increasing returns to a factor? So this is the question of increasing returns to factor. So look the causes now. First point is, means in the first stage I told you that your TP increase at increasing rate and MP increases. So why it happens that our total production increases at increasing rate and MP increases? So why it happens? So it happens because of the three reasons. The first point is fuller utilization of the fixed factor. So naturally है, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करोगे तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से. अब मान लीजिए कोई एक मशीन है, उस पर एक लेबर 8 आवर्स काम करता है. अब आपने एक लेबर को और लगा दिया, उसको बोला भाई 8 घंटे की शिफ्ट आप भी करो. तो मशीन तो एक ही, लेकिन अब वो 16 आवर्स मशीन चल रही है. अब आपने एक लेबर और लगा दिया, उसने भी 8 आवर्स काम किया, तो अब मशीन फुल 24 आवर्स चलने लगे. तो नेचुरली जो 8 आवर्स का प्रोडक्शन होगा और जो 24 आवर्स का प्रोडक्शन होगा, तो नेचुरली है उसमें आपका टीपी हाई रहेगा. सो व्हेन वी यूज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, देखिए आपके पास जो फिक्स फैक्टर हैं उनका पूरा पूरा यूज करेंगे, तो इन दैट केस योर टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. सो लुक, आई एम रीडिंग इट. In the initial stage, fixed factor remains underutilized. Its fuller utilization calls for greater application of the variable factor, that is labor. Hence, initially additional units of variable factor add more and more to total output, and margin output of the variable factor leads to increase. And the next one is increased efficiency of variable factor. अभी क्या होता है कि जब आपके पास वेरिएबल फैक्टर है और आपके पास एक्स्ट्रा लेबर होगी, देन यू विल डिवाइड द वर्क. आप बोलोगे आप ये काम करो, आप ये काम करो, तो एक पर्सन एक ही काम करेगा. जैसे आपने देखा होगा किसी टेलर की शॉप में जब आप कभी जाते होंगे, तो देखा कि आपने एक पर्सन सिर्फ कपड़ा काटने वाला होगा, वो कपड़ा काटेगा. दूसरा पर्सन वो कपड़े को सिलेगा. तीसरा पर्सन उसमें छोटे मोटे काम करेगा, प्रेस करेगा, बटन लगा देगा, कुछ और छोटा मोटा काम कर देगा. तो दैट मीन्स एक पर्सन एक ही काम कर रहा है. सो उससे क्या होगा, वो बार बार करेगा, डेली करेगा, तो उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. ही विल बिकम मोर एफिशिएंट. और तो जब वो ज्यादा एफिशिएंट पड़ेगा तो नेचुरली आपका टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से. सो लुक, आई एम रीडिंग फॉर यू नाउ. additional application of the variable factor facilitates process based division of labor. तो इससे क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि हमने काम को बांट दिया, तो एक पर्सन एक ही काम करेगा. दैट रेजेस द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर. अब उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है. अब जैसे आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं, एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर है और वो भी पर्टिकुलर किसी खास क्लास को पढ़ाने वाले, तो वो बार बार उसी काम को करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. नेक्स्ट वन, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिक्स बिटवीन द फैक्टर्स. तो जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाता है. आपने कई बार देखा होगा मकान का जब लैंटर डलता है तो एक मशीन आती है, वो हो गया फिक्स फैक्टर.
15 से 20 मजदूर होते हैं, वो हो गए वेरिएबल फैक्टर। और आपने देखा होगा कि उनके बीच में इतना अच्छा तालमेल होता है लेबर के बीच में और मशीन के बीच में कि वो बड़े से बड़ा लेंटर 4 से 6 घंटे में डालकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो आपने कभी ध्यान दिया हो लेंटर डलते समय तो देखना कि उसमें एक पर्सन एक ही काम करता है। अगर कोई मशीन को ऑपरेट करने वाला पर्सन अलग होगा, उसमें सीमेंट डालने वाला पर्सन अलग होगा, बदरपुर डालने वाला अलग होगा, उसमें रोड़ी डालने वाला अलग होंगे, और ऊपर काम छत पे काम करने वाले दूसरे होंगे। तो इसका मतलब उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर भी कर लिया और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। वो शोर शराबा करते रहते हैं और काम कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई our total production increase at increasing rate. So these are the three causes for the increasing returns to a factor. Now students, the same concept in the another one, that in the second phase, why MP starts to fall. MP fall होता है and TP पहले इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से एंड देन TP स्टार्ट होगा फॉलिंग करना। तो ऐसा डिमिनिशिंग क्यों होता है? तो दीज हैव द थ्री कॉजेज। द फर्स्ट वन इज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई फैक्टर फिक्स होगा, और जब फिक्स फैक्टर अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ काम करता है तो आप जितने मर्जी लेबर बढ़ा दो, आपका आउटपुट नहीं बढ़ सकता। अब मान लीजिए एक मशीन है वो फुल 24 आवर चल रही है, तो आप जितना मर्जी आप लेबर को बढ़ा दो, आउटपुट तो उतना ही निकलेगा मशीन से। तो फिक्स फैक्टर के होने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटिविटी। क्या होगा कि अगर मशीन चलते चलते कोई खराब हो जाए तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये लॉ शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होता है। तो आप मशीन चेंज नहीं कर सकते, तो नेचुरली इन द टाइम बीइंग योर प्रोडक्शन विल स्टार्ट टू फॉल। एंड पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। और अगर आप हद से ज्यादा लेबर लगा दोगे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन बनने के बजाय कोऑर्डिनेशन बिगड़ भी सकता है। So these are three causes for the diminishing returns to a factor. So please pause your screen and you can read it by your own. If you have any doubt, you can ask. First of all, try to read each and every sentence. Now students, we are doing some numerical portion of this topic. Last class में हमने कुछ questions भी आपको पहले बताए थे. So suppose this is a question and solve it in your notebook and raise your hands. Okay. So students, in this question, as you can see that आपको TP given है और आपको MP फाइंड करना है। तो MP के लिए आपको फॉर्मूला बताया था हमने, TP नंबर माइनस TP नंबर -1। तो 1/1 माइनस करेंगे, पहले 0 है तो 0 ही लिख देंगे। इसके बाद आप इस वैल्यू में से नीचे की वैल्यू में से ऊपर की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। तो तुषार क्या आंसर आया? 5। के बाद 11 में से आपने 4 माइनस किया, 5 क्या वैल्यू आई? सर 6। 6। देन इसमें से इसको माइनस किया, बोलिए वैल्यू। सर 7। एंड लास्ट वैल्यू सर 6। 6. This is margin product. Now average product formula is total product divided by units. तो आप 0 तो कोई वैल्यू नहीं बनती है। नाउ टोटल प्रोडक्ट को देखिए, टोटल प्रोडक्ट 5 है, 5 डिवाइड बाय 1 तो आपका 5 हो गया। नाउ 11 डिवाइड बाय 2 तो इट्स ए 5.5। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू बोलिए भाई। सर 6। लास्ट सर 6। ओके। So these are the values of average product. Now students look, this is the question. ये आपका पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन है, एमपी गिवन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज प्रोडक्ट। सो यूनिट्स, एमपी, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट।
तो ये आपके पास गिवन है 1 2 3 4, MP गिवन है 3 5 2 -1। अब पूरा करिए।